Good evening, everyone. We started with the new chapter depreciation, in which I said we have to understand two things. We have to understand two things about depreciation. One, calculation of depreciation. The one is calculation of depreciation, and second one is right accounting of depreciation. There are various methods. उनमें से दो मेथड्स हमारे सिलेबस में है. एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड दूसरी है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. Accounting we will understand. Accounting is same irrespective of the method. Accounting never changes. What do you mean by depreciation? Depreciation is a continuous and permanent decrease in the value of depreciable fixed assets because of use, wear, tear, outdatation, passage of time, efflux of time. Many other reasons, कुछ भी reasons हो सकते हैं, but it is one phenomenon in which the value of the fixed assets gets decreased. This concept is applicable to fixed assets, not to the current assets. And try to understand, this is not applicable to land because land की value हमेशा increase होती है because उसकी life unlimited है. There is no fixed life. There is no estimated useful life for the land. The life of land is unlimited. Then, next, we must have three factors, three things to calculate depreciation. One, we must know the original cost of the asset. What is the original cost of the asset? It is the purchase price minus any rebate plus expenses incurred to bring the asset to the present location and condition. All the expenses related to purchase of fixed assets are capital expenditure and हम उसको asset में add करते हैं. ठीक है? The second important component is the estimated useful life. So first component is original cost of the asset. Second component is estimated useful life. So we have to predict the useful life of the asset. And then the estimated scrap value of the asset at the end of its useful life. जब asset की life खत्म होगी तो हमें उसके बदले में कितना मिलेगा? When we will scrap it out. So that is estimated useful life. Take an example. हम स्टडी कर रहे हैं, लिख लेना स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसलिए हम इसको बोलते हैं SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM. और this is also called as fixed installment method of depreciation. Or this is also called as original cost method of depreciation. So हम स्टडी कर रहे हैं मेथड नंबर 1 SLM मेथड. हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, लिख लेना डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू the first formula is original cost of the asset minus estimated scrap value divided by estimated useful life.
divided by estimated useful life. This is depreciation per annum. Original cost of the asset minus estimated scrap value right divided by estimated useful. ये कल हम डिस्कस कर रहे थे. और depreciation per annum is equal to original cost of the asset multiply by rate of depreciation divided by 100 multiply by 12 by 12. 12 by 12 लिख लेगा. ठीक से लिखो, समझ के करना है. ठीक है. लिख लिया? यस और नो? लिख लिया क्या? बोलो. हाँ, इन द सिंगल एंट्री हमने सेकंड फॉर्मूला यूज करके डेप्रिसिएशन ढूंढा था. ठीक है. सिंगल एंट्री में सेकंड फॉर्मूला यूज करके राइट हमने डेप्रिसिएशन ढूंढा था. ठीक है. ध्यान देना. मैं एक एग्जांपल दूंगा and I will tell you why we called it a straight line method, why we called fixed installment method और original cost method. ध्यान देना. लिखो एग्जांपल. एग्जांपल एग्जांपल ABC purchased a plant costing rupees 1,80,000 and paid erection charges of rupees 30,000. What is erection charges? उस प्लान को इंस्टॉल करने के लिए हमें चार्जेस लगेंगे. इरेक्शन और इंस्टॉलेशन चार्जेस इज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू राइट परचेस ऑफ असेट. तो टोटल हमारी असेट 2,10,000 की हो गई. कितनी की हो गई? 2,10,000. व्हाट इज योर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट? 2,10,000. ठीक है. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 4 years, at the end of which estimated useful life is 4 years, at the end of which estimated scrap value is rupees 10,000. ठीक है. फाइंड आउट depreciation using SLM method. Using SLM, straight line method. Solution. ABC purchase plant costing rupees 1,80,000
पेड इरेक्शन चार्जेस ऑफ 30, टोटल प्लान की कॉस्ट इज 2,10,000, estimated useful life is 4 years, at the end of which estimated scrap value is 10,000. Find out the depreciation using SLM. So depreciation per annum is equal to original cost of the asset 1,80,000 plus 30,000 minus क्या फॉर्मूला है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. 2,10,000 इज द कॉस्ट ऑफ द असेट, उसमें से 10,000 रिकवर होगा. आज मैं पे करूंगा 2,10,000, कल जाके मुझे 10,000 रिकवर होगा, मतलब मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होने वाली है, 2 लाख. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज मैं पे कर रहा हूं 2,10,000, टुडे आई एम गोना पे 2,10,000, फ्यूचर में जाके मुझे 10,000 मिलेगा. आई विल गेट 10,000 इन द फ्यूचर. सो आज मैं पे कर रहा हूं 2,10,000, इन फ्यूचर आई विल गेट 10,000. सो मुझे 2,10,000 को कितना करना है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,10,000, मतलब मुझे कितना डेप्रिसिएट करना है, 2 लाख. सो दिस 2 लाख इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएबल अमाउंट. हमें 2,10,000 को 2 लाख से डेप्रिसिएट करके उसको 10,000 करना है ओवर 4 इयर्स, ओवर 4 इयर्स. ठीक है, सो लिखो. सो 1,80,000 plus 30 the original cost minus estimated scrap value over its useful life 4 years. So 2,10,000 minus 10,000 divided by 4. That is 2 lakhs is the depreciable amount, is 50,000 per annum. 50,000 per annum. So if you use the asset for 1 year, the depreciation is 50,000. So try to understand. Suppose this is your first year, this is your second year, this is your third year, and this is your fourth year. This is end of first year, second year, third year, and fourth year. End of first, second, third, and fourth. Try to understand. On the day 1, the value of the asset is 2,10,000. I will use asset for the 12 months and I will depreciate it by 50,000. I will depreciate it by 50,000. तो वैल्यू बचेगी 1,60,000. 2,10,000 में से 50,000 माइनस करूंगा, बचेगी 2,60,000. Then I will use the asset for the entire year and then I will provide depreciation of 50,000. So my value will be 1,10,000. I will use the asset for entire third year. I will provide depreciation of 50,000. The value of the asset will become 60,000. And then I will provide depreciation of 50,000. The value will be 10,000. मेरे बुक्स में वैल्यू कितनी बचेगी, 10,000. सो 2,10,000 को मैंने 10,000 किया है. सो मैंने ओवरऑल 2 लाख डेप्रिसिएट किया. फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर में 50,000, फोर्थ ईयर में 50,000. सो अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं. सपोज दिस इज योर ग्राफ. This is your graph. This is number of years. This is depreciation in rupees. Year 1, year 2, year 3, year 4. So depreciation is 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 and 50,000. 10,000, 20,000, 30,000, 40,000
and 50,000. So in the first year, depreciation is 50,000. In the second year, depreciation is 50,000. Third year 50, fourth year 50, fifth year 50. So if you draw these points, you get a straight line, right? You get a straight line. 4 year है तो ये. If you अगर आप इसको प्लॉट करते हो, डेप्रिसिएशन को अगर प्लॉट करते हो, you will get straight line, right? So every year the depreciation is 50,000. So if you plot the graph, I will say you get a straight line, and therefore this method is called as straight line method of depreciation. इसको क्या बोला जाता है? Straight line method of depreciation. लॉजिक समझा इसलिए लिखने का? Because every year depreciation सेम रहेगा. पूरे साल का depreciation year 1 हो, year 2 हो, 3 हो, 4 हो, depreciation is equal. Depreciation equal है, fixed है, इसलिए इसको बोला जाता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. जैसे इंस्टॉलमेंट फिक्स रहता है, आपने लोन लिया है, और अगर आप लोन रिपे करते हो ईएमआई में, तो आपका इंस्टॉलमेंट जैसे फिक्स रहता है, एवरी मंथ यू हैव टू पे द सेम अमाउंट. वैसे इस केस में एवरी ईयर आपका डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, 50,000 50,000 50,000 50,000. इसलिए इसको बोला जाता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. एंड तीसरा हम इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ओरिजिनल कॉस्ट में लगता है. ये जो सेकंड मेथड, सेकंड ऑप्शन दिया है ना मैंने आपको, ये हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया जाता है. तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. सिंपल है. अच्छा, ये एग्जांपल समझा क्या? 50,000 का कंसेप्ट समझा क्या? यस. अरे वी नेवर पे डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन पे नहीं किया जाता, असेट परचेस की जाती है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है. हम किसी को पे नहीं करते 50,000, उसकी एंट्री सिखानी है मुझे. डेप्रिसिएशन कैश आइटम नहीं है, नॉन कैश आइटम है. सो एंट्री देखो, एंट्री ध्यान देना. एंट्री, लेट मी फर्स्ट राइट, जर्नल एंट्री समझ लेना. लेट मी फर्स्ट राइट, कोई लिखेगा नहीं. I purchase the machinery, एंट्री आ गई. प्लांट अकाउंट डेबिट. I purchase the plant for 2,10,000. Total 2,10,000. 2. Cash oblique bank account 2,10,000. कोई लिखेगा नहीं, खाली ध्यान देना. फर्स्ट ईयर, सपोज आपने 1 अप्रैल को परचेस किया, आपने 1 अप्रैल को परचेस किया प्लांट ऑफ 2,10,000. फिर ईयर खत्म हो गया 31 मार्च को. सो आपने पूरे साल प्लांट यूज किया है, तो पूरे साल अगर यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन कितना देना है? 50,000. तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी. डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, डेबिट किया जाएगा. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 50,000. 2. प्लांट अकाउंट क्रेडिट 50,000. सो मैंने 50,000 से असेट कम कर दिया. असेट डेबिट है, प्लांट डेबिट है, एंट्री समझ लेना. प्लांट डेबिट है, डेप्रिसिएशन देने के बाद मैं उसको क्रेडिट करूं. सो मैंने क्या किया, 50,000 से प्लांट डिक्रीज कर दिया. 50,000 से प्लांट डिक्रीज कर दिया, तो प्लांट को डेबिट था, क्रेडिट कर दिया. मतलब मैंने असेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट किया. असेट को मैंने किस में कन्वर्ट किया? एक्सपेंस में कन्वर्ट किया. ठीक है. देन एट द एंड ऑफ द ईयर हम P&L अकाउंट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं, जो हमें सीखना है. तो ये डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा. तो डेप्रिसिएशन को कौन सा बैलेंस है? डेबिट. ये डेबिट कहां पे ट्रांसफर करना होगा? P&L को. तो डेप्रिसिएशन को क्लोज करना है, वो डेबिट है, तो उसको क्रेडिट करना होगा, एंड उसका डेबिट P&L को देंगे. तो एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. लॉस अकाउंट डेबिट 50,000. 2. डेप्रिसिएशन अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज किए जाते हैं बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. तो ये आ गया
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट है, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च पे हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। किसमें ट्रांसफर कर दिया? राइट, हमने ट्रांसफर कर दिया कौन से अकाउंट में? पी एंड एल अकाउंट में। ये फर्स्ट ईयर की एंट्रीज आ गए। लेट मी राइट, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान देना खाली। दिस इज ईयर 1 एंट्री। सो मैंने 2,10,000 का मेरा आउटफ्लो हो गया। तो जब मैंने पैसे पेड किए, मैंने बोला वो एक्सपेंस नहीं, वो असेट है। मैंने बोला ये असेट है, मैंने बोला ये मेरी असेट है। एक साल होने के बाद उस असेट में से 50,000 एक्सपेंस बन गया। 2,10,000 में से 50,000 एक्सपेंस हो गया। जैसे असेट यूज होगी, असेट एक्सपेंस में कन्वर्ट होगी। असेट एक्सपेंस में कन्वर्ट होगी। आपने मोबाइल में रिचार्ज किया, आपके पास 1,000 रुपीज का रिचार्ज है, वो आपका असेट है। बट जैसे आप कॉलिंग कर दोगे तो बैलेंस कम हो जाता है, मतलब असेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रही है। जो यूज किया, जितने का कॉलिंग हो गया वो एक्सपेंस हो गया। सो ये यहाँ पे असेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रही है। सेकंड एंट्री असेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रही है। यूज होने के बाद उतना बेनिफिट खत्म हो जाएगा, यूज होने के बाद उतना बेनिफिट खत्म हो जाएगा, एंड देयरफॉर असेट डिक्रीज होगी और एक्सपेंस इंक्रीज होगा। एंड फिर डेप्रिसिएशन को हमने क्लोज किया बाय ट्रांसफरिंग टू पी एंड एल अकाउंट। ये फर्स्ट ईयर की एंट्री आएगी। ईयर 2 में क्या आएगा, ध्यान देना। राइट, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 बैलेंस दिखता हूं, देयरफॉर बैलेंस मशीनरी अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? देखो डेबिट कितना था मशीनरी में? 2,10,000। कितना डेबिट था? 2,10,000। क्रेडिट कितना किया? 50। सो प्लांट अकाउंट में कितना बचेगा? प्लांट अकाउंट में कितना बचेगा, ध्यान देना। प्लांट असेट है, डेबिट बैलेंस होना चाहिए। 2,10,000 डेबिट माइनस 50,000 क्रेडिट, तो बचेगा 1,60,000 डेबिट। कितना बचेगा? 1,60,000 डेबिट। आप मेरी डायग्राम में देखोगे ना, फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस 1,60,000 है, 50,000 माइनस होने के बाद। ये आगे फर्स्ट ईयर की एंट्रीज, ये आगे फर्स्ट ईयर की एंट्री। ईयर 2 में विल यू अगेन परचेस असेट? नो, नॉट एप्लीकेबल। सो आपने पूरे साल 1 अप्रैल को कोई एंट्री नहीं आएगी ईयर 2 में। एसेट परचेज जब होगी उसी ईयर में उसकी परचेस की एंट्री आएगी, एवरी ईयर नहीं आती। जिस ईयर में आपने एसेट परचेस की उसी ईयर में वो परचेस की एंट्री आती, बाकी ईयर्स में नहीं आती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो यू परचेस द एसेट, उसकी कोई एंट्री नहीं। देन यू प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन। अप्रैल खत्म हो गया, मई खत्म हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ईयर खत्म होगा। तब ईयर जब खत्म होगा तो हम बोलेंगे अरे मैंने मशीनरी पूरे साल यूज की, अब मुझे प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, मतलब मुझे पी एंड एल अकाउंट करना है। मतलब मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हुआ, तो ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन दिया जाता है, फिर से 50,000 का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्लांट अकाउंट क्रेडिट 50,000। क्या एंट्री आ गई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट क्रेडिट 50। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन किस में ट्रांसफर होगा? उस ईयर के पी एंड एल में होगा। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ये आ गया आपकी सेकंड ईयर की एंट्री। सो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर आएगा, डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर आएगा। यू विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। सो अब भी देखो इस ईयर के एंड में कितने की मशीनरी थी? 1,60,000 की मशीनरी थी। उसमें से और कितना क्रेडिट हुआ? डेबिट था 1,60,000, क्रेडिट हुआ 50, तो कितना बैलेंस रहेगा? 1,10,000 डेबिट। ठीक है, देन ईयर 3 स्टार्ट होगा। एंट्री आएगी परचेस की, फिर से नहीं आएगी। फिर थर्ड ईयर अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कुछ परचेस नहीं, कोई सेल नहीं, मशीनरी का कुछ नहीं। मार्च खत्म हो गया, तब अगर पी एंड एल करना है तो पी एंड एल करना है तो उसके पहले डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्लांट अकाउंट क्रेडिट 50,000। और फिर डेप्रिसिएशन किस में ट्रांसफर करोगे? पी एंड एल में। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्लोज कर दिया आपने। डेप्रिसिएशन में बैलेंस बचता ही नहीं, जितना डेप्रिसिएशन दिया वो पूरा का पूरा पी एंड एल में ट्रांसफर किया। सो अब कितना बैलेंस बचेगा बोलो? मशीनरी में कितना बैलेंस बचेगा थर्ड ईयर के एंड में? बोलो थर्ड ईयर के एंड में मशीनरी में कितना बैलेंस बचेगा? बोलो
एवरीवन करो टाइप। कितना बैलेंस बचेगा? परफेक्ट, परफेक्ट, यस गुड। कितना बैलेंस बचेगा ले लो। यस, 1,10,000 का बैलेंस था, डेबिट था, हमने यहाँ पे कितना क्रेडिट किया? 50। 1,10,000 डेबिट, 50 क्रेडिट, मतलब कितना बचेगा? 60,000 डेबिट। मतलब अभी भी कितने की मशीनरी बचेगी? 60,000। अब ईयर 4 लास्ट ईयर आ गया, परचेस की एंट्री नहीं है लास्ट ईयर में। फिर पूरा अप्रैल से मार्च मशीनरी यूज हो गई पूरे साल, फोर्थ ईयर में एंड होने पे हमें डेप्रिसिएशन देना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू मशीनरी अकाउंट या प्लांट अकाउंट क्रेडिट 50,000। फिर उस ईयर का डेप्रिसिएशन उस ईयर के P&L में ट्रांसफर होगा। P&L अकाउंट डेबिट 50,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 50,000। डेप्रिसिएशन क्लोज हो गया। अब कितना बैलेंस बचेगा बोलो? अब कितना बैलेंस बचेगा एवरीवन? फोर्थ ईयर के एंड में कितना बैलेंस बचेगा? थर्ड ईयर के एंड में कितना था? 60। थर्ड ईयर के एंड में 60। आपने फोर्थ ईयर में कितना डिक्रीज किया? कितने से क्रेडिट किया? 50। 60 डेबिट माइनस 50 क्रेडिट, 10,000 डेबिट बैलेंस बचेगा। सो दीज आर द एंट्रीज। अब लिख लेना, लिखो, अब लिखो। ठीक से लिखो, होने के बाद यस लिखो, मतलब मुझे समझेगा हुआ ही नहीं हुआ। मैंने कॉलमनर एंट्रीज लिखी है बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू रिपीट द एंट्रीज। जल्दी करो। So what is the entry of the depreciation? देखो, when you purchase the asset, entry is machinery to cash। जब आप डेप्रिसिएशन देते हो एंट्री आती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, एंड फिर उस डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करना है, P&L टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एवरी ईयर देना होता है बिकॉज अगर हम मशीनरी यूज करेंगे तो उसके वैल्यू में डिक्रीज होगा, उस डिक्रीज को हम अकाउंट फॉर करते हैं, उस डिक्रीज को हम अकाउंट फॉर करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे
लिखो। होने के बाद यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये समझा। सो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन आएगा, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन आएगा। लिखो अनदर एग्जांपल, PQR purchased a machinery costing rupees, PQR purchased machinery costing rupees 1,20,000, 1,20,000, right? It's expected on 1st April 2015. Its expected useful life is 3 years, right? Estimated scrap value is nil. Estimated scrap value nil. At the end of the useful life, at the end of useful life, the actual amount realized is rupees 4,000. Actual amount realized is 4,000. ठीक है, let's see. You are not able to see anything. क्यों? एक मिनट में फिर से शेयर करता हूं स्क्रीन। नहीं, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यस, अब चेक करो। अगर सेजल प्रॉब्लम है तो यू कैन लीव एंड अगेन ज्वाइन, कोई इश्यू नहीं है। कभी कभी दिक्कत हो सकती है तुम्हारे एंड पे, ठीक है। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। हमने मशीनरी परचेस की 3 साल यूज होने वाली है। हमने कब मशीनरी परचेस की, यहां पे लिखो ईयर एंड्स ऑन, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन, accounting year ends on 31st March, on 31st March। हमारा ईयर अप्रैल से मार्च है। हमारा ईयर कौन सा है? अप्रैल से मार्च। ध्यान देना, हमने एसेट परचेस की 1 अप्रैल 15 को, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया 31 मार्च 16 को, सेकंड ईयर खत्म हो गया 31 मार्च 17 को, एंड लास्ट ईयर आ गया 31 मार्च 18। 3 ईयर है ना। सो फर्स्ट ईयर इज 15 16, सेकंड ईयर इज 16 17, थर्ड ईयर इज 17 18। हमने यहाँ पे मशीनरी परचेस की थी 1,20,000 की।
और हमें लगा कि उसकी वैल्यू 0 होगी एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, तो हमें उसको 1,20,000 को 0 कर देना है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। मतलब हमें टोटल कितना डेप्रिसिएशन देना है 1,20,000। हमें डेप्रिसिएट कितना कितना करना है उसको 1,20,000, बट एक साल में नहीं करना है, वी हैव टू डू इट ओवर 3 years, 40,000 40,000 40,000 लाइक दैट। ठीक है, 40,000 40,000 40,000 40,000 लाइक दैट, ध्यान देना। सो यहां पे लिखा जाएगा, ध्यान देना, मैं यहां पे ढूंढ रहा हूं सॉल्यूशन। लिखो डेप्रिसिएशन, राइट, एज पर SLM, डेप्रिसिएशन पर एनम एज पर SLM, एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, लिखो ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 0 divided by useful life 4, sorry, useful life is 3, 1,20,000 divided by 3 is 40,000 per annum, 40,000 per annum, बराबर, डेप्रिसिएशन इज 40,000 पर एनम। फर्स्ट ईयर में आप यूज करोगे, आप पूरे साल यूज करोगे, इसलिए 40,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। एसेट की वैल्यू हो जाएगी 80,000। फिर आप सेकंड ईयर पूरा साल यूज करोगे और आप 40,000 का डेप्रिसिएशन दोगे, तो एसेट की वैल्यू बच जाएगी 40,000। फिर आप थर्ड ईयर पूरा डेप्रिसिएशन यूज करोगे, अगर आपने पूरे साल यूज किया तो 40,000 का डेप्रिसिएशन देके 40 माइनस 40 0 हो जाएगी। बट एक्चुअली हमें मिला कितना, 4,000 रुपए मिला। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ मेरे बुक्स में मशीनरी 0 रुपए की हो जाएगी। थर्ड ईयर के एंड में मेरे बुक्स में मशीनरी 0 की हो जाएगी, बिकॉज मेरे बुक्स में 1,20,000 की थी। मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में 40 माइनस किया, सेकंड ईयर के एंड में 40 माइनस किया, थर्ड ईयर के एंड में 40 माइनस किया, ओवरऑल मैंने 1,20,000 का डेप्रिसिएशन दिया। 1,20,000 माइनस 1,20,000 मेरे बुक्स में 0 है, बट मुझे एक्चुअल में मिले 4,000, तो मेरा 4,000 का गेन होगा। तो अब उसकी अकाउंटिंग करनी है, ध्यान देना। मैं कैसे लिख रहा हूं, लेट मी फर्स्ट राइट। फर्स्ट हमारा फर्स्ट ईयर है, हमारा फर्स्ट ईयर है 15-16। हमने 15-16 में असेट परचेस की। कब परचेस की, 15-16 में। कब परचेस की, 1 अप्रैल को। कब परचेस की, 1 अप्रैल 15 को। हमारा ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च। तो हमने 1 अप्रैल को 2015-16 हमने मशीनरी परचेस की। एंट्री क्या आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। हमने कितने की मशीनरी परचेस की, 1,20,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक 1,20,000। हमने मशीनरी परचेस की 1,20,000 की। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1,20,000। देन सेकंड, अब अप्रैल के बाद मुझे बोलो, अप्रैल के बाद फिर से कोई परचेस है इस ईयर में, पूरे ईयर में हमें ईयर ऑन ईयर एंट्री करनी होती है। कोई परचेस है नहीं, कोई सेल है नहीं, तो अप्रैल के बाद मई जून, बाकी हमें ट्रांजैक्शंस की एंट्री नहीं करनी, खाली मशीनरी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है। बाकी ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे, परचेस हो रहा होगा, सेल हो रहा होगा, कैश आ रही होगी, जा रही होगी, जो कुछ भी है, हमें उसकी एंट्रीज नहीं करनी, हमें मशीनरी के इस चैप्टर रिलेटेड एंट्रीज करने। तो देखो अप्रैल से मार्च पूरे साल में ना ही कोई परचेस है ना ही कोई सेल है, तो ईयर खत्म हो जाएगा, मार्च एंड आ जाएगा। जैसे मार्च एंड आएगा 31 मार्च 16 को, 31 मार्च 16 को हमारे ईयर 15-16 की एंट्री लिख रहा हूं। 31 मार्च 16 को मुझे डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन दूंगा, मैंने 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 मंथ मैंने एसेट यूज की है, तो मेरा राइट 12 मंथ का डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन 40,000 है, तो मैं 40,000 का डेप्रिसिएशन दूंगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 40,000। एंट्री क्या गई, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अब हम एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं। एवरी ईयर के एंड में टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस वी प्रिपेयर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें ये एक्सपेंस जाएगा, डिप्रेशन जाएगा, एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 40,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 40,000. क्लियर है? दिस इज द एंट्री. व्हाट इज द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर? बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट. कोई मुझे बोलेगा क्या कितना बैलेंस होगा मशीनरी अकाउंट में? लिखो यस. कितना बैलेंस होगा मशीनरी अकाउंट में? यस प्लीज. कितना बैलेंस होगा? 80. यस. कितना डेबिट था? 1,20,000 डेबिट था. डेप्रिसिएशन की वजह से कितना क्रेडिट किया? 40. तो अब कितना बाकी? 80,000 डेबिट बैलेंस. तो इस ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा. बराबर. तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में मशीनरी को 80,000 बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस. अब सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया 16-17. सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया 16-17. ध्यान देना 16-17 में क्या हो रहा है. 16-17 में कोई परचेस नहीं, कोई सेल नहीं, कुछ नहीं. 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच में कोई परचेस नहीं, कोई सेल नहीं. तो पूरे साल मशीनरी यूज हो गई, यूज हो गई, यूज हो गई, यूज हो गई, एंड एट द एंड हमें उसके पूरे साल का डिप्रेशन देना है. हमने पूरे साल यूज किया, राइट. तो 31 मार्च 17 को, 31 मार्च 17 को हमारे बुक्स में एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 40,000. पूरे साल यूज किया इसलिए डेप्रिसिएशन 40,000. ठीक है. फिर उस ईयर के एंड में मतलब 31 मार्च 17 को भी P&L बनेगा उस ईयर के लिए, और उसमें ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया जाएगा. P&L अकाउंट डेबिट 40,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 40,000. तो हमारे बुक्स में बैलेंस कितना बचेगा? बोलो अब. हमारे बुक्स में बैलेंस कितना बचेगा? 80,000 डेबिट बैलेंस था, फिर यहाँ पे क्रेडिट हुआ 40, तो हमारे बुक्स में बैलेंस बचेगा 40,000 डेबिट. 40,000 डेबिट बैलेंस बचेगा. अब ईयर स्टार्ट होगा 17-18. परचेस की कोई एंट्री है क्या? नहीं. पूरे साल में कोई मशीनरी परचेस कर रहे हो? नहीं. एट द एंड ऑफ द ईयर आप मशीनरी सेल कर रहे हो. कितने में सेल कर रहे हो? 4,000 एट द एंड. बट बिफोर यू सेल द मशीनरी, आपने मशीनरी पूरे साल यूज की है ना, तो आपको डेप्रिसिएशन देना होगा. तो अब ध्यान देना 31 मार्च को हमने ऐसे यहां पे लिखा है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ द एक्चुअल अमाउंट रियलाइज ₹4,000. सो हमने एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ मतलब कब की बात हो रही है? 31 मार्च 18 को, मतलब पूरे साल मशीनरी यूज होने के बाद हमने सेल किया है. तो जितने दिन हमने उस साल में यूज किया उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा. सर हमने अप्रैल से मार्च पूरा साल यूज किया है. बिफोर यू सेल द असेट फर्स्ट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, बिकॉज हमारे बुक्स में अभी 31 मार्च 17 की मशीनरी है विच इज 40,000. हमने 31 मार्च 17 को सेल नहीं किया है, हमने 31 मार्च 18 को सेल किया है. सो ऑलवेज रिमेंबर, ये फंडा है. जिस दिन हम मशीनरी सेल करते हैं हमें उस दिन की वैल्यू चाहिए. अब भी हमारे पास कब की वैल्यू है? 40,000. 31 मार्च 17 की वैल्यू है. सेल कब हो रहा है? 31 मार्च 18, मतलब एक साल यूज होने के बाद सेल हो रहा है. तो बिफोर यू सेल प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल. तो हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन देना होगा. 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक डेप्रिसिएशन आएगा. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 40,000. Depreciation account debit to machinery 40. Then transfer it to P&L. P&L account debit to depreciation account credit. And last year में एक एंट्री आएगी 31 मार्च को. You will sell the machinery. Bank account debit. बोलो कितने मिले? 4,000. मुझे बोलो कि एक सेकंड ना, कितना बैलेंस बाकी था मशीनरी में? 40,000 डेबिट था. 40,000 आपने क्रेडिट किया मशीनरी को, तो बैलेंस कितना है? 0. बैलेंस कितना है? 0. सो मतलब 0 की मशीनरी आपने कितने में सेल की? आपके बुक्स में 0 है मशीनरी का, और आपने कितने में सेल किया? 40,000 में, मतलब सॉरी 4,000 में. तो इंट्रा की बैंक अकाउंट डेबिट 4,000,
बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 टू प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। मशीनरी तो जीरो की है हमारे बुक्स में, मशीनरी जीरो की है, राइट। प्रॉफिट हो गया 4,000। सो ये लिखो, लिखो यस। सर अगर मशीनरी की वैल्यू जीरो नहीं होती है और हम सेल करते तो अगर सपोज मशीनरी में 2,000 बैलेंस होता, तू 4,000 में सेल करती तो 2,000 का प्रॉफिट होता। अगर मशीनरी में 10,000 का बैलेंस होता और तू उसको 4,000 में सेल करती तो 6,000 का लॉस होता। लाइक एग्जाम्पल, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप मशीनरी सेल करते हो तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट, यू रिसीव मनी, सेल्स वैल्यू। अगर लॉस होता है तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डेबिट होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होता है, दोनों में से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट इनकम होता है इसलिए क्रेडिट किया। टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ये होती है बुक वैल्यू, हमारे बुक में कितनी उसकी वैल्यू है। सो अगर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलता हूं, ध्यान देना, अगर मैं ऐसे बोलता हूं मेरे बुक्स में मशीनरी 10,000 की है और मैंने 4,000 में सेल की, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 4,000, लॉस अकाउंट डेबिट 6,000 टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 10,000। मैंने 10,000 की मशीनरी 4,000 में सेल की, मुझे 6,000 का लॉस हो गया। सपोज ऐसे बोलो कि मैंने 10,000 की मशीनरी 12,000 में सेल की, तो मेरे बैंक में आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट 2,000, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 10,000। 10,000 की मशीनरी मैंने 12 में सेल की, इसलिए मेरा 2,000 का प्रॉफिट हुआ। समझ में आ रहा है? सो ऐसे होता है। सो ये आपकी कंप्लीट एंट्री आती है। अच्छा, किसी का डाउट है क्या? बोलो, एनीवन हैज डाउट प्लीज। सो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। परचेस की एंट्री कौन से डेट पे आएगी, कौन से ईयर में आएगी? परचेस की एंट्री इन द ईयर ऑफ परचेस आएगी, परचेस की एंट्री इन द ईयर ऑफ परचेस आएगी, ठीक है। सेल की एंट्री इन द ईयर ऑफ सेल आएगी, वो हमेशा नहीं आती। परचेस की एंट्री इन द ईयर ऑफ परचेस, सेल की एंट्री इन द ईयर ऑफ सेल, राइट। एंड एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी एंड उस डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री आएगी। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट, एंड उस डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री आएगी, P&L टू डेप्रिसिएशन, P&L टू डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। व्हेन यू सेल द असेट, अगर हम असेट सेल करते हैं तो बिफोर यू सेल द असेट फर्स्ट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, उस ईयर का डेप्रिसिएशन देंगे। और क्यों डेप्रिसिएशन देंगे? बिकॉज जिस दिन सेल हो रही है उस दिन तक हम असेट यूज कर रहे हैं ना। तो एग्जाम्पल ऐसे मान के चलो, इसी एग्जाम्पल में थर्ड ईयर, सेकंड ईयर के एंड में, मतलब 31 मार्च 17 को हमारे बुक्स में 40,000 की मशीनरी थी। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूं, ध्यान देना। 31 मार्च 17 को हमारे बुक्स में 40,000 की मशीनरी थी, उसकी यूजफुल लाइफ है 31 मार्च 18 को खत्म हो। एंड सपोज मैंने उसको सेल किया 1 अक्टूबर 17 को,
मैंने उसको सेल किया 1 अक्टूबर 17 को, तो मैंने कितने मंथ्स के बाद सेल किया? अप्रैल 17, मई 17, जून 17, जुलाई 17, अगस्त 17, सितंबर 17, सितंबर एंड, अक्टूबर बिगिनिंग मतलब सितंबर एंड, 6 मंथ्स के बाद। सो आई यूज द मशीनरी फॉर 6 मंथ्स बिफोर आई सेल द असेट। मैंने कब सेल की? 1 अक्टूबर को। मैंने इस दिन पे सेल की मशीनरी फॉर ₹4,000 एग्जाम्पल। मैंने 1 अक्टूबर को मशीनरी सेल की, 1 अक्टूबर 17 को मशीनरी सेल की। अभी तक मेरे बुक्स में 40,000 की मशीनरी थी 31 मार्च 17 को। फिर मैंने 6 मंथ्स यूज किया, तो आई विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ 6 मंथ्स विच इज 20,000। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना था? पूरे साल का डेप्रिसिएशन 40,000 पर एनम था, तो 6 मंथ्स का कितना रहेगा? हाफ, 20। सो मैं बोलूंगा जो 31 मार्च 17 को जो 40,000 की मशीनरी है, 6 मंथ्स यूज होने के बाद उसकी वैल्यू 20,000 रहेगी। कितनी रहेगी? 20,000। सो 20,000 की मशीनरी मैंने 4,000 में सेल की एट ए लॉस ऑफ 16,000। समझा क्या अभी जो बोला? अभी जो बोला समझा क्या? मैंने कितने दिनों के बाद सेल की है? 6 मंथ्स के बाद। सो जिस दिन मैं सेल कर रहा हूं ना, उस दिन की मुझे वैल्यू ढूंढनी है। सो मेरे पास 31 मार्च 17 की वैल्यू है 40,000। मैंने सेल की 1 अक्टूबर 17 को, मैंने 6 मंथ्स के बाद सेल किया, तो मैं 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन दूंगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 40, तो 6 मंथ्स का कितना? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 20, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 20, तो 40 31 मार्च माइनस 20,000, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो 6 मंथ्स के बाद उसकी वैल्यू कितनी बचेगी मेरे बुक्स में? 20, जो मैं सेल कर रहा हूं 4,000 में, तो मेरा लॉस होगा 16,000 का। वही मान के चलो, वही मान के चलो 31 मार्च पे हमारे बुक्स में 40,000 की मशीनरी बची थी। हमने उसको 31 मार्च 18 को, ईयर खत्म हो रहा, लाइफ भी खत्म हो रही है, हमने 1 जनवरी 18 को सेल किया। मतलब हमने इस साल में कितने मंथ्स यूज किए? 9 मंथ्स यूज किए। कितने मंथ्स यूज किए? 9 मंथ्स। और मैंने यहां पे सेल किया 10,000 में, या मैंने इसको सेल किया एग्जांपल 12,000 में। क्वेश्चन में लिखा है मशीनरी वॉज सोल्ड, ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा है मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 1 जनवरी 18, मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर 12,000। तो मैंने कितने मंथ्स यूज करने के बाद मशीनरी सेल की? बोलो ना। आई हैव यूज इट फॉर 9 मंथ्स। तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 1 जनवरी 18 की नहीं है, सेल की नहीं है, उसके 9 मंथ्स पहले की वैल्यू है 40,000। तो मैं इस 9 मंथ्स का डिप्रेशन दूंगा। 40,000 पूरे साल का डिप्रिसिएशन है 12 मंथ्स का, तो 9 मंथ्स का कितना? इट इज 3/4, 30,000। सो आई विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स बिफोर आई सेल। मुझे डेप्रिसिएशन देना होगा टिल द डेट ऑफ सेल। तो मैं बोलूंगा जिस दिन सेल हो रही है उस दिन की वैल्यू कितनी है? 10,000। जिस दिन सेल हो रही है, मेरे बुक्स में मशीनरी 10,000 की है, मैंने 12,000 में सेल किया, मतलब 2,000 का प्रॉफिट हो गया। समझा या नहीं? यस और नो? यस एवरीवन? यस और नो? गुड। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमें जिस दिन सेल हो रही है ना, उस, देखो, जिस, ये 12,000 हमें कौन से तारीख में मिला? 1 अक्टूबर को। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें मशीनरी की वैल्यू कौन सी तारीख की होनी चाहिए? सॉरी 1 जनवरी को ना, 1 जनवरी को 12,000 मिले, तो हमें मशीनरी की वैल्यू भी कौन सी तारीख में पता होनी चाहिए? राइट, 1 जनवरी की पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेके मैंने बोला जो 31 मार्च पे 40,000 की मशीनरी 9 मंथ्स यूज होने के बाद उसकी वैल्यू 10,000 होगी, तो मैं बोलूंगा 10,000 की मशीनरी मैंने 12,000 में सेल की, तो मेरे बुक्स में एंट्री आएगी, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, टू प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट 2,000, टू मशीनरी डेबिट है 10,000। इस तारीख में मेरे पास बुक्स में मशीनरी कितने का डेबिट है? 10,000। मशीनरी गोज आउट क्रेडिट 10,000। 10,000 की मशीनरी 12,000 में सेल की, इसलिए 2,000 का प्रॉफिट है। Anyone has doubt?
एनीवन हैज डाउट? अगर है तो बोलो, कोई इशू नहीं है. यस, आई थिंक ओवी ने क्वेश्चन पूछा था. डिड यू गेट योर आंसर ओवी मैम? डिड यू गेट योर आंसर? ओके गुड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम हमेशा देखो, एक हमेशा याद रखना कि अगर हम डिप्रेशन नहीं देंगे तो असेट भी सेल नहीं करेंगे. जिस दिन हम असेट सेल कर रहे हैं, हमें उस दिन की पता, तभी हमें प्रॉफिट लॉस पता चलेगा. तो उस दिन की वैल्यू लाने के लिए हमें डिप्रेशन देना बहुत मैंडेटरी है. और हम इसको एसएलए मेथड क्यों बोलते हैं? देखो, एवरी ईयर में डिप्रेशन रिमेन सेम. एवरी ईयर में डिप्रेशन रिमेन सेम. इसलिए इफ यू प्लॉट इट ऑन ए ग्राफ यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन. और इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों बोलते हैं? बिकॉज राइट, एवरी ईयर सेम अमाउंट का डिप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा. एवरी ईयर पीएनएल में 40 40 40 40 जाएगा. सेम अमाउंट एवरी ईयर आएगी, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट. ठीक है, किसी के डाउट्स? अच्छा, आई विल बी टेकिंग लेक्चर टुमारो एज वेल, बट मैं टाइमिंग जनरली मॉर्निंग में रहेगा. टुमारो इज अ सैटरडे, सो मैं मॉर्निंग में ले लूंगा. ठीक है, आई विल अपडेट यू द टाइम. मुझे लेना है बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक द लिंक. ठीक है, बिकॉज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, 11 के चैप्टर लाइफ लॉन्ग है. दे विल ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड, वो आपको लाइफ लॉन्ग लगेंगे. सो कल भी मेरा लेक्चर रहेगा. आई विल अपडेट यू द टाइम. ठीक है, चलो, थैंक यू. आई विल share the notes and upload the lecture by the tonight. Thank you.